Hello students, good afternoon. Today I want to give you a piece of advice and I want to give you a message. All those chapters which is completed by me, you have to complete and submit your fair copy in a school, because I want to check that because from from 4 and 5 months I am providing and we are providing online classes, and through online classes I have already explained and already described some grammar topics which is related from our syllabus, and some literature topics from first flight, and now the running topic is related from footprints without feet. The chapter number 2, the thief's story, we have to discuss in detail today. So firstly, we have to understand the real meaning and real theme of the box. And according to the theme of the box, we shall try to understand the whole story. So let us start. I was still a thief when I met Anil. Who was Anil? Anil was a writer. And who is I? I is the speaker. स्पीकर आई जो है सो एक स्पीकर है, चोर है, और अनिल एक राइटर है. एंड द ओनली 15 years old. द स्पीकर वॉज ओनली 15 years old and I was an experienced and fairly successful hands in the field of theft. मतलब चोरी करने में उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी. ही वॉज टू एक्सपर्ट how to steal. Anil was watching a wrestling match when I approached him. The speaker is telling now. When I approached him, that means when I reached at home of Anil, I saw Anil was watching a wrestling match. He was about 25 years old. He was a tall man. He was lean and thin. And he looked easygoing, and he was looking so simple person. He was looking so simple person, kind and simple enough for my purpose. And I think he was very very simple and kind, and it is enough for my purpose. मतलब क्या, यह आदमी जो है सो बहुत ही सिंपल है और मैं आसानी से इससे चीट कर सकता हूँ. दिस वन द wants of the speaker. That means chore. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. बहुत दिनों से मेरा लक ठीक नहीं चल रहा है. स्पीकर कहता है, ये चोर कहता है, जो बहुत दिनों से मेरा लक ठीक नहीं चल रहा है. मैं भी हो सकता है कि यह जो इंसान है, यह जो यंग फेलो है, इस आदमी का कॉन्फिडेंस मैं आसानी से जीत सकता हूँ और यह इंसान हमारे ऊपर आसानी से विश्वास कर सकता है. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. इट इज़ टोल्ड बाय द थीफ. यह चोर के द्वारा कहा गया कि तुम जो है सो एक रेसलर दिख रहे हो. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. कुछ दोस्ताना अंदाज में उसने कहा, सो डू यू
He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. Here the writer wants to know his name, wants to know the thief's name. And he was replying and he tells, I am Hari Singh, my name is Hari Singh. I lied, I took a new name every month. The speaker is thief here. He is playing the role of thief and he used to change his name every month. वह प्रत्येक महीना अपना नाम चेंज करता था. What is the reason behind it? Because कि नाम चेंज करने से वह पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वो बार बार अपना नाम क्या करता था, चेंज कर लेता था, क्योंकि उसकी काम ही थी चोरी करने का. और जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी करना एक जुर्म है, ये गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इससे अपने आदत को ख़राब करते हैं और हमारा आदत ख़राब हो जाता है. ओके, सो नहीं करना चाहिए. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. आफ्टर हिज इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. After these introductions, मतलब ये सब बात समझने के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द well-oiled wrestlers. तो अनिल ने एक अच्छे रेसलर्स की तरह बात किया. Who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, थोड़ा ही बात ही कहा और ये बात सुन करके अनिल वहाँ से चला गया. I followed casually. और मैं उसे जो है सो निहारता रहा. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Again, जो चोर है, जो स्पीकर है वो चोर है. यहाँ पे कथाकार, नरेटर जो है सो चोर है. कथाकार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ. Then hearing the statement of the narrator of Hari Singh, अनिल रिप्लाइड, बट आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें उसका तनख्वाह नहीं दे सकता, हमारे पास पैसे नहीं हैं. आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अनिल, हरी सिंह बिकेम सो सैड और बिगैन टू थिंक फॉर अ मिनट. कुछ क्षण के लिए वह सोचने लगा. परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि हमने जिस आदमी को चुना है हो सकता है मैंने गलत आदमी का चुनाव कर लिया है. देन अगेन ही आस्क्ड टू अनिल, कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल आस्क्ड, कैन यू कुक? कि क्या तुम भोजन पका सकते हो? ही गेव द आंसर, ही आंसर्ड, आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मतलब मैं खाना अच्छी तरह से बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. एंड हियरिंग द आंसर ऑफ द नरेटर, Anil, the writer, became so happy and kept condition in front of him, in front of Hari Singh. If you can cook, then maybe I can feed you. कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. He took me to his room. वह अपने कमरे में मुझे लेकर के गया. Over the
जुम्मन स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कोनी, कि मैं बालकोनी में ही सो जाऊंगा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह बहुत ही ख़राब खाना था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग का मतलब आवारा कुत्ता। आवारा कुत्ता के सामने अनिल ने उस खाना को क्या किया था? फेंक दिया था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि दूर हो जाओ, चले जाओ, गेट लॉस्ट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। यह बात सुनने के बाद भी नरेटर वहाँ से हिला नहीं। आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't help laughing। वह he couldn't help laughing मतलब क्या? वह हंसे बिना नहीं रह सका। he couldn't help laughing। Later he patted me on the head and said never mind, he had teach me to cook। अनिल जो है सो हमारे पीठ को थपथपाया, हमें थपथपाया, हमारे सर को थपथपाया और कहा नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा, वह मुझे खाना बनाना क्या करेगा? सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। एंड ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे नंबर को जोड़ना सिखाया, मतलब नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं। सेंटेंस लिखना बताया। आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ अनिल। मैं उसके लिए जो उसका आभारी हो गया, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हो गया। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, कि मैं जानता था दिस इज द विश एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नरेटर, कि मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि यदि मैं एक बार एजुकेटेड मैन की तरह लिखना जान जाऊँ, समझ जाऊँ, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, कोई भी लिमिटेशन हमारे सामने नहीं होगी, क्योंकि मुझे नाम लिखना आ जाएगा, मुझे सेंटेंस बनाना आ जाएगा और मुझे ऐड करना आ जाएगा। इसके लिए वह चोर जो है सो बहुत आभारी हो गया। किसका? राइटर का, अनिल का, जिसका नाम अनिल है, हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। लेकिन यहाँ स्पीकर जो है सो किस काम के लिए आया था? स्टीलिंग करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए। किसको? अनिल को, कि इसके साथ मैं चीटिंग करूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. I was quite pleasant. Quite means यहाँ average होता है। Quite means average, QUITE का मतलब यहाँ average होगा। average का मतलब अच्छी तरह से समझ लो। अगर मान लो कि हमने कहा कि quite this shirt is quite cheap, this shirt is quite cheap, then ना यह शर्ट जो है ना तो ज़्यादा महंगा है और ना ज़्यादा सस्ता है। So for this purpose we can use quite in sentence। So I was quite pleasant, कि मैं खुश था
मैं दुखी भी नहीं था, ज़्यादा खुश भी नहीं था, अति तो सब कुछ खराब होती है। तो मैं लिमिटेड था। वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए जो है सो काम कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय में अनिल के लिए चाय बनाया। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मैं जो है सो दूसरे कामों में, दिन के दूसरे कामों में फिर अपना टाइम देने लगा। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। क्यों, किस लिए? इसलिए कि अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, कि कम से कम दिन में रुपयों का जो है सो कुछ लाभ हो जाए। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मैं सोचता था, मैं सोचता, ही न्यू कि वह जान गया है, वह जानता। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि इस तरह से मैं रुपये बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसे बना रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इसके लिए वह कभी भी अपने दिमाग में जो है सो मेरे बारे में गलत बात नहीं सोचा, मतलब उससे यह बात बुरा नहीं लगती थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week, lend the next, he kept worrying about his next check, but as soon as I arrived, he would go out and celebrate. He would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines and quit way to make a living. So in next class I shall try to describe page number 10 and 11, and this is your work. You have to read at home, and after that you can able to understand the story and you can deal the answer in better way. So finally I want to tell you, you have to complete your question answer from your NCERT books, because it's so important, especially for you, because the paper of the board will be divided into 2 parts in 2021, and 50% question will be containing from literature and 50% from grammar section and writing section. So from my points of view, you will have to understand the message, because it will help you more and more, especially you will appear in final examination, in board examination. Okay, thanks. In next class I will describe page number 10 and 11.